Praise the Lord, church. Praise the Lord कलीसिया। Nice to be with you on this Sunday morning. और इस रविवार को सुबह में आपके साथ होना बहुत ही अच्छा है। Today we are going to talk about, does God have secret? और आज हम बात करने वाले कि क्या परमेश्वर के पास गुप्त बातें हैं। Now we have always a thought in our mind, whatever is written in the Bible, according to that only God will work for us. और हमारे मन में हमेशा ये भी एक बात होती है कि जो कुछ बाइबल में लिखा है उसके अनुसार परमेश्वर करता है। Now many times we have kept a thought and a foundation is laid in our life that if we hear from God, it should be in line with God's word. और कई बार हमारे जीवन में हमने ऐसी नींव डाल रखी है कि अगर हम कुछ भी परमेश्वर से सुनते हैं तो वो वचनों से जुड़ित होना चाहिए। But today I am going to say that this is not the complete truth. लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ये पूर्ण सच्चाई नहीं है। Let's turn our Bible to Psalms 25 and verse 14. और आइए हम अपने बाइबल को निकालेंगे भजन संहिता उसका 25 अध्याय और 14 वचन। The secret of the Lord is for those who fear him, and he will let them know his covenant and reveal to them. और यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करता है। Now this word is very very clear what David wants to say. और The secret of the Lord is for those who fear him. और अभी ये जो वचन है बहुत ही स्पष्ट है जो दाऊद बताना चाहता है कि जो परमेश्वर का जो भेद है वो उनके ऊपर प्रकट होता है जो परमेश्वर से डरते हैं। Now that means there are secret with God. इसका मतलब परमेश्वर के साथ कुछ भेद है। And he will disclose those secret only to those people who fear him. और उन भेदों को वो उन्हीं लोगों को प्रकट करेगा जो उससे भय खाते हैं। Yes, and he says he makes his covenant known to them. और हाँ वो कहता है कि अपनी वाचा को उनको बताएगा। What do you mean by keeping the covenant? God keeping the covenant with us. और इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर हमारे साथ वाचा रखता है। When God is keeping covenant with us, that means he is going to talk to us. He is going to tell us things which we don't know. और जब परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपनी वाचा तुम्हारे साथ बांधूंगा तो इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर हमें कुछ भेद वाली बातों को प्रकट करेगा, बात करेगा। So the David said there are many secrets and God discloses the secrets only to those who fear him. और दाऊद कहते हैं कि कहीं ऐसे भेद है लेकिन वो उन्हीं को प्रकट करता है जो लोग उससे भय खाते हैं। If I am talking about secret, if God is talking about secret, that means there are certain things which God has not disclosed in this book. और अगर परमेश्वर भेद की बातों के बारे में बात करता है तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो भेद है जो इस किताब में लिखे नहीं हैं। Secret of the Lord is of those who fear him. और जो परमेश्वर के भेद है वो उन्हीं के ऊपर प्रकट होते हैं जो उससे डरते हैं। That means whatever Abraham has written down, whatever Noah has written down, whatever David has written down, there are no more secrets for us. और इसका मतलब जो कुछ अब्राहम ने लिखा है जो कुछ दाऊद ने लिखा है वो हमारे लिए भेद की बातें नहीं हैं। For them it was a secret which God had told to them, and whatever God told to them, I do not know whether they have written completely or whatever God told them they have written down. और ये उनके लिए भेद था लेकिन उन्होंने जो भी बातें लिखी वो परमेश्वर ने बताई हुई लिखी और मुझे नहीं पता कि उन्होंने पूर्ण बातें लिखी है या नहीं। Today if God speaks to you, let me tell you, we have a baseline. We say that whenever God speaks to us or whenever we hear from God, it should be based on God's word. और हमारे पास ये एक बात होती है कि जब कभी परमेश्वर हमसे बातें करता है तो वो परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़ित होना चाहिए। But I don't agree with this statement because I am going to show you from the scripture. After I teach you, you will also agree for that. लेकिन मैं इस कथन से असहमत हूं क्योंकि जो कुछ आज मैं आपको सिखाने वाला हूं वो सीखने के बाद आप भी मेरे साथ सहमत होंगे। Did Enoch tell you everything when Enoch was walking with God? और क्या इनोक ने सब कुछ उन बातों को बताया जब वो परमेश्वर के साथ चलता था? When Enoch was walking with God, suddenly he was lifted up in heaven. और जब इनोक परमेश्वर के साथ चल रहा था अचानक से वो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ उठाया गया। Suddenly he disappeared. और अचानक से वो गायब हो गया। Now let me tell you, there is a place of rapture in the Bible. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक रैप्चर जो है उसकी एक जगह है बाइबल में। But the rapture still has to occur. लेकिन जो रैप्चर है वो अभी भी होने वाला है। According to God's word. लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार According to God's word in Ecclesiastes chapter 3 and verse 2.
और जो इक्लेसियास्टिक किताब है परमेश्वर के वचनों के अनुसार सपोपदेशक के तीसरा अध्याय उसकी दूसरी आयत कहती है, a time is there to be born and there is a time to die. और बाइबल कहती है कि एक समय है जन्मने का, एक समय है मृत्यु का। That means everyone needs to be born and everyone has to die. इसका मतलब हर एक जन को जन्म लेना है और हर एक जन को मरना है। Hebrew chapter 9 and verse 27 says, और इब्रानी 9 उसका 27 वचन कहता है, and just as it is appointed and destined for all men to die once and after this judgment. और इब्रानी उसका 9 उसका 27 वचन में लिखा है कि जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। That means God has clearly mentioned in the scripture that man has to die. इसका मतलब परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से लिखा है वचन में कि मनुष्य का मरना निश्चित है। But there are certain people mentioned in the Bible who never died. लेकिन कुछ लोग हैं जो बाइबल में उनके बारे में लिखा है जो कभी नहीं मरे। I am not talking about exceptions. I am talking there are secrets with the Lord. और मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि कुछ बातें छूटे, लेकिन कुछ भेद परमेश्वर के साथ है। God might have already spoken to Enoch, and what God spoke to Enoch when he was walking with him, Enoch doesn't mention it. और परमेश्वर ने इनोक से बात किया होगा, और लेकिन जो परमेश्वर ने बातें किया उसने नहीं लिखा, क्योंकि उसको अचानक उठा लिया गया। No, God might have told him not to share with anyone. और शायद परमेश्वर ने उससे बताया होगा कि ये बातें किसी को खोलना नहीं। Now let me tell you, when God reveals the secret, God discloses secret to those who fear him. Sometime he may tell you to tell someone or tell others, or sometime he may not he may tell you keep it confidential. और जब हम परमेश्वर का डर खाते हैं तो परमेश्वर कई बार भेदों को हमारे साथ खोलता है, और वो कई बार दूसरों को बताने के लिए कहता है, या फिर कई बार वो अपने सीमित ही रखता है। Let's look to the example of Elijah. और आइए एलिजा के उदाहरण को देखते हैं। Elijah was lifted up. और एलिजा को भी उठाया गया। When Elijah was lifted up, God might have spoken to Elijah before that. और तभी भी परमेश्वर ने शायद उससे पहले, उठाने से पहले उसके साथ बात किया होगा। But Elijah doesn't talk anything about what God spoke to him regarding he being lifted up. लेकिन एलिजा है वो उनका बारे में कुछ भी नहीं कहता है जब वो उठाया गया था। I want to tell you, Moses was the friend of God. और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मूसा था वो परमेश्वर का मित्र था। Moses was the friend of God. जो मूसा परमेश्वर का मित्र था। And God had discussed many things with Moses. और परमेश्वर ने बहुत सारी बातों की चर्चा की मूसा के साथ। Many secrets were revealed to Moses. और कहीं भेद जो है मूसा के ऊपर प्रकट किए गए। I want to tell you one of the secrets which God told Moses. और मैं आपको एक भेद को बताने वाला हूँ जो परमेश्वर ने मूसा को बताया। Which is written in God's word. जो परमेश्वर के वचनों में लिखा है। When Moses led the people of Israel out of Egypt. और जब मूसा ने इस्राएल के लोगों को इजिप्ट के बाहर निकाला। They came to the Red Sea. और जब वो लाल समुद्र के पास आए। Till that time God had not told Moses what he's going to do with the Red Sea. और उस समय परमेश्वर ने मूसा को नहीं बताया था कि वो लाल समुद्र के साथ क्या करेगा। People were torturing Moses because Pharaoh's army was behind. जो लोग हैं वो मूसा को सता रहे थे क्योंकि जो फारो की सेना थी उनके पीछे थी। They were telling, why did you brought us out of Egypt? Why was there not grave in Egypt that you brought us here to die? और वो कह रहे थे कि मिस्र से बाहर आपने हमें क्यों लेके आए, हम मिस्र में बेहतर नहीं थे। Now let me tell you something. और मैं आपको अभी कुछ बताने वाला हूँ। When at the edge of the Red Sea Moses lifted up his hand. जब लाल समुद्र के किनारे पर मूसा ने अपने हाथों को उठाया। And God spoke to him. और जब परमेश्वर ने उससे बातें की। God said to Moses, be still and know the power of God. और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि शांत रहे और परमेश्वर की सामर्थ को देख। And what happened? और फिर He क्या told हुआ? Moses to put the rod on the water. और उसने मूसा से कहा कि जो लाठी है वो समुद्र पर रख। And the Red Sea got divided. और फिर लाल समुद्र दो भाग हो गया। This was the secret which God disclosed to Moses. और ये एक भेद था जो परमेश्वर ने मूसा के ऊपर प्रकट किया। Before that, nowhere in the scripture it has been mentioned God could divide the Red Sea. और इससे पहले कहीं पे भी वचन में नहीं लिखा गया कि परमेश्वर जो है लाल समुद्र को दुभागेगा। When people of Israel was in wilderness. और जब लोग जो इज़राइल के मिस्र के जंगल में थे। That time in the wilderness there was no food to them to eat. और जब जंगल में कोई भी खाना नहीं था उनके लिए खाने के लिए। Israel never thought then in heaven
there is a bread factory. और मूसा ने या फिर लोगों ने कभी नहीं सोचा कि स्वर्ग में भी एक ब्रेड आएगा, एक रोटी मिलेगी। And heaven started bringing manna down. और अभी जो है वो स्वर्ग जो है मन्ना देने लगा लोगों को। Was never mentioned before in the Bible that manna can come from heaven. और ये कभी भी बाइबल में उससे पहले नहीं लिखा गया था कि स्वर्ग से मन्ना आएगा। That means once God has told and it has been written down, it is no more secret. इसका मतलब जब एक बार परमेश्वर बोलता है और जब उसको लिखा गया होता है तो वो भेद नहीं होता है। Now manna coming from heaven will not remain secret because God has already done it before. और अभी स्वर्ग से मन्ना उतरना ये भेद नहीं रहेगा क्योंकि परमेश्वर ने इसको प्रकट किया है। But what is David talking about in Psalms 25 verse 14? और फिर दाऊद क्या बात करता है इस वचन में? Psalms 25 verse 14, David is saying the secret of the Lord shall be disclosed to those who fear him. और भजन संहिता 25:14 में दाऊद कहता है कि परमेश्वर के भेद उन लोगों के ऊपर प्रकट किए जाएंगे जो लोग उससे डरते हैं। I want to tell you, Moses knew something which people never knew. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मूसा को कुछ बातें पता थी जो लोग नहीं जानते थे। I want to tell you there are spiritual mysteries and there are secrets. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ आत्मिक भेद है और गुप्त बातें हैं। Many times when God speaks or God does, people, believers say, show me from the scripture. कई बार जब परमेश्वर बातें करता है तो विश्वासी लोग कहते हैं कि हमें ये वचनों से दिखाओ। Now let me tell you, whatever is been shown in the scripture, written down in the scripture, are no more secrets. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कुछ बाइबल में लिखा गया है, उल्लेख किया गया है, वो कोई भी भेद नहीं है। That means God still has lot of things, secrets hidden with Him. इसका मतलब बहुत सारे कई ऐसी भेद है जो परमेश्वर के साथ छुपे हुए हैं। That means He can work in a many different way today also. इसका मतलब वो आज भी कई अलग अलग प्रकार से कार्य कर सकता है। I want to bring a difference between secret and mystery. और मैं आज आपको जो है भेद और गुप्त बातों के बीच में के बातों को बताने वाला हूँ। Secrets are hidden things meant to be discovered and once it is found, the meaning is very जो clear. भेद है वो हमें जानने की जरूरत है, वो छुपे हुए हैं और जब वो एक बार प्रकट दिए किए जाते हैं तो वो भेद नहीं होते हैं। Again I will tell you, secrets are hidden things meant to be discovered and once they are disclosed, their meaning is very और clear. वापस मैं बताता हूं कि जो भेद है वो मनुष्य के लिए छुपे हुए बातें हैं जो हमें प्रकट होने की आवश्यकता है और जब वो प्रकट हो जाती है तो वो भेद नहीं होते हैं। Mysteries are apparent and accessible, but it depends upon interpretation. और जो गुप्त बातें हैं उन तक हम पहुंच सकते हैं लेकिन वो जो है अनुवाद के ऊपर निर्भर होता है। Now there are many mysteries in God's word. और अभी परमेश्वर की वचनों में बहुत सारी गुप्त बातें हैं। This is what Apostle Paul said, one mystery I reveal unto you, Christ in you is the hope of glory. और यही बात जो है पौलुस बताता है कि ये जो गुप्त बात एक प्रकट होती है कि परमेश्वर की महिमा है वो हमारे अंदर है जो यीशु मसीह है। This needs to be interpreted. और इसको अनुवाद करने की जरूरत The है। meaning can be understood only after proper और interpretation. जो अर्थ है तभी समझ आ सकता है जब उसका सही अनुवाद हो। So I have explained you what is the mystery and I explained you what is secret. और मैंने आपको बताया है कि गुप्त बातें क्या है और भेद की बातें क्या है। People say if you can't find it written in the Bible, then it is not from God. और लोग कहते हैं कि अगर ये बाइबल में लिखा नहीं है तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। I want to tell you this is not the truth. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सच्चाई नहीं है। Because in the Bible it was no more mentioned before God departed the Red Sea. और क्योंकि बाइबल में कहीं पे भी पहले नहीं लिखा गया था कि परमेश्वर है लाल समुद्र को डुबाएगा। When Israel came to Jericho, they had to cross Jordan River. और जब इज़राइल के लोग यरीहो में आए तो उनको यरदन नदी को पार करना था। And when they had to cross Jordan River, they knew God had already departed for them Red Sea. और जब वो यरदन नदी के पास आए तो उनको पता था कि परमेश्वर ने पहले ही लाल समुद्र को डुबागा था। They knew God can do it. और वो जानते थे कि परमेश्वर अभी भी कर सकता And they है। expected God to do it in the same way. और उन्होंने परमेश्वर से उम्मीद रखा कि उसी रीति से करने के लिए। The only way you can identify what is from God is by knowing the Spirit of God
and knowing His voice. और एक ही बात से हम उन बातों को हम जान सकते हैं कि परमेश्वर के द्वारा जानना और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जानते हुए। I want to tell you about a prophet in the Bible. और मैं आपको एक नबी के बारे में बताना चाहता हूँ जो God बाइबल में है। spoke to that prophet, and what God spoke was something different which he had never spoken और before. परमेश्वर ने उस नबी से बातें की और जो बातें किया वो बहुत ही अलग थी जो पहले कभी भी ऐसे नहीं की If थी। God tells us today such kind of things, we will not agree. अगर परमेश्वर आज हमें इस प्रकार की बातें कहेगा तो हम उससे सहमत नहीं होंगे। Let's turn our Bible to Ezekiel chapter 4 and verse 4. और आइए हम अपने बाइबल को निकालेंगे इज़िकेल उसका 4 अध्याय और उसका 4 वचन। What God is talking to prophet Ezekiel. और क्या परमेश्वर इज़िकेल नबी से बात करता है? He is saying, then lie down on your left side towards the north to bear symbolically the wickedness and the punishment of the house of Israel. You shall bear their wickedness and punishment for the number of days that you lie on your side. और फिर तू बाई करवट लेकर इज़राइल के घराने का अधर्म अपने ऊपर रख, क्योंकि जितने दिन तक तू करवट लेटा रहेगा उतने दिन तक उन लोगों के अधर्म का भार सहता रहेगा। See what God is talking to Ezekiel. और देखिए यहाँ पे इज़िकेल से परमेश्वर क्या बात करता God है। is saying you should lie on the left side. और परमेश्वर कहता है कि तुझे बाई और लेटना है। And if you lie on the left side, then only the sins and the punishment of Israel will be taken. और बाई और जब लेटेगा तभी इज़राइल के घराने का जो अधर्म है वो तू लेगा। This is what God spoke. और यही परमेश्वर ने बात किया। Ezekiel was a man who was knowing to hear the voice of God. और परमेश्वर इज़िकेल एक ऐसा जन था जो परमेश्वर की आवाज को सुनता था, समझता था। And if God spoke to him, people heard it. और जब परमेश्वर ने उससे बात किया, Don't you think it is a secret? क्या आप ये नहीं समझते कि ये भेद था? Hadn't God told any time before, sleep like this, then only sins and punishment will go away. क्या परमेश्वर ने पहले कभी इज़िकेल से ऐसा कहा था कि जब इस तरह से सोएगा तो उनका अधर्म हट जाएगा? If God tells to you today, sleep straight, then only the sins will be taken away, punishment will be taken away. Will you believe it? और अगर आज परमेश्वर आपसे कहेगा कि आप सीधा सो जाए और तभी पाप जो है हटाए जाएंगे, तो क्या आप इस पर विश्वास करोगे? No, when God spoke to Ezekiel, that means God has many secrets to do things. और जब परमेश्वर ने इज़िकेल से बातें किया, इसका मतलब बहुत सारे भेद है जो परमेश्वर के साथ ही है। I want to tell you, God spoke to Apostle John. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो प्रेरित जॉन से, यूहन्ना से भी बातें की। God showed Apostle John many things in the island of Patmos. और जो पैटमस का जो पहाड़ है वहां पे बहुत सारे बातों को परमेश्वर ने प्रकट किया यूहन्ना के ऊपर। John saw visions in the island of Patmos. और यूहन्ना ने जो पटमस का टापू था वहां पे एक दर्शन को देखा। What do you think? Have John mentioned everything what he has seen in the book of Revelation? और आप क्या सोचते कि जो भी यूहन्ना ने देखा था क्या सभी बातें उसने प्रकटीकरण की किताब No, में he लिखी है? only wrote those things which God told him to write down. और नहीं, उन्होंने उन्हीं बातों को लिखा जिन बातों को परमेश्वर ने लिखने के लिए कहा था। That means many things God might have shown him, but he has not written down. इसका मतलब बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने उसे दिखाया होगा लेकिन उसने नहीं लिखा है। Now what John never wrote and God showed him is a secret which God disclosed to John. It is not disclosed to us. जो परमेश्वर ने उसे दिखाया था और उसने जो भी देखा था वो नहीं लिखी गई है, वो एक भेद है और वो हमारे लिए छुपे हुई बातें हैं। Can you know one thing which God is telling you today? He can do such things which no one can do on the earth. क्या आप एक बात को आज जान सकते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा ऐसी बात कर सकता है जो इस धरती पर किसी ने नहीं किया है? Secret is another whole book other than the Bible which God has. और जो भेद है वो और एक किताब है जो बाइबल के अलावा परमेश्वर के पास है। And that is the reason God does many things which nobody knows. और इसी कारण परमेश्वर बहुत सारी बातों को करता है जो कोई ही नहीं जानता है। I would like to tell you about Apostle Paul. और मैं अपोस्तल पौलुस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। To Apostle Paul,
Apostle Paul mentioned in book of Corinthians. और जो कुरिन्ती की किताब में पौलुस लिखता है, I know a man 14 years ago who was lifted up in paradise. और मैं एक मनुष्य को जानता हूँ 14 साल पहले जो पैराडाइज में उठाया गया, Who was lifted up in third heaven. और जो तीसरे स्वर्ग में उठाया गया। I don't know with body or without body. This is Apostle Paul mentioned. अब वो कहता है कि मैं नहीं जानता शरीर के साथ या बिना शरीर के, वो कहता है इस He said, I heard many things, but I am not able to speak them. I cannot utter it out. और वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारी बातों को सुना है, बट मैं उन बातों को बोल नहीं सकता, उच्चार नहीं कर सकता। That means what Apostle Paul wants to say, God never allowed him to speak whatever he heard in heaven. और इसका मतलब जो कुछ उसने स्वर्ग में देखा, परमेश्वर ने उसे अनुमति नहीं दी बोलने के लिए, जो कुछ उसने देखा था। But still God told him to write down that yes, there was a time when Paul was lifted up caught up in third और heaven. लेकिन फिर भी परमेश्वर कुछ बातों को लिखने के लिए कहता है जब वो तीसरे स्वर्ग में उठाया गया था। So what I am teaching you today, और मैं आज आपको क्या सिखा रहा हूँ, what we are learning today, और आज हम क्या सीख रहे हैं, there are many secrets still today with God. और परमेश्वर के साथ कई भेद आज भी है, And these secrets are hidden. और ये जो भेद है वो छुपे हुए हैं। God discloses these secrets only to those who fear और Him. परमेश्वर इन भेदों को उन्हीं के ऊपर प्रकट करता है जो लोग उससे डरते हैं। Isaiah chapter 43 verse 18. और यशाया उसका 43 अध्याय और उसका 18 वचन, What is God saying to Isaiah? Forget the former things, do not dwell on the past. और परमेश्वर यशाया से क्या कहता है, Isaiah 43 verse 18. और 43 अध्याय और उसका 18 वचन हम पढ़ेंगे। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। Don't talk about the past. और प्राचीन काल की बीती हुई घटना के बारे में बात मत करो। Don't think that God can only do those things which are written in the Bible. ऐसा मत सोचिए कि परमेश्वर उन्हीं बातों को कर सकता है जो बाइबल में लिखी है। There are lot of things which God can still do in your life and my life which are not mentioned in this book. और कहीं ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में कर सकता है जो इस किताब में नहीं लिखी है। This is what God is telling Isaiah. Forget the former things. Whatever I have done in the life of Israel before, please tell them to forget those. और यही बातों को यशाया की किताब में परमेश्वर कहता है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन बातों पर मन लगाओ। Do not keep your thinking pattern based on what I have already done. और जो बातें पहले से ही बीत चुके हैं उन पर स्मरण ना करो, उन पर मन मत लगाओ। Let's turn to verse 19. और आइए 19 वचन को देखेंगे। Listen carefully. I am about to do a new thing. Now it will spring forth. Will you not be aware of it? I will even put a road in the wilderness and rivers in the desert. और देखो मैं एक नई बात करता हूँ, अब वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। What God is telling Israel. और परमेश्वर इज़राइल से क्या कहता है? What God is telling you today. और परमेश्वर आपसे आज क्या कह रहा I है? am going to do a new thing. और मैं नई बात करने वाला हूँ। What do you mean by new thing? और नई बात इसका अर्थ क्या है? New thing means what has God has not done in your life before. नई बात मतलब जो बातें परमेश्वर ने पहले आपके जीवन में नहीं की है। If it is written in this book, it will not be a new thing for you. अगर ये बात इस किताब में लिखी है तो वो बात नई नहीं रहेगी आपके लिए। If it is written in the book, that thing is not new anymore. अगर वो बात इस किताब में लिखी गई है तो वो बात नहीं रहेगी। That means God, if He is going to do something in your life today, He is not going to do just as it is written in the book. और इसका मतलब परमेश्वर आज आपके जीवन में नई बात करने वाला है जो इस किताब में नहीं लिखी है। Not necessary that he should follow only the pattern which is mentioned in this book. और यही उचित नहीं है कि आप इस किताब में लिखी हुई बातों का ही अनुकरण करें। So today if you are praying to God, अगर आज आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, today if you are hearing from God, अगर आज आप परमेश्वर से सुन रहे हैं, don't keep God in that box of your thought that he can function only this way. और परमेश्वर को आपके विचारों में सीमित ना रखो कि परमेश्वर सिर्फ इतना ही करेगा। Remember, in God's word there are mysteries in God
but secrets are not there. और याद रखिए इस बात को कि परमेश्वर के वचनों में रहस्य है, गुप्त बातें हैं, लेकिन जो भेद है वो प्रकट नहीं है। Secrets allow you to do what others cannot और do. जो गुप्त बात, जो भेद है, वो आपको करने के लिए अनुमति देते हैं जो दूसरों ने नहीं किया है। That means if God is going to disclose secrets to you, you will be able to do those things which other people have never done. इसका मतलब अगर परमेश्वर भेदों को आपके ऊपर प्रकट करता है तो आप उन बातों को करोगे जो बातें दूसरों लोगों ने अभी तक नहीं की है। Don't expect God to do the same thing. और परमेश्वर से उम्मीद ना रखे कि परमेश्वर वही बातों को करे। God is planning to do a new thing in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में नई बातों को करने को चाहता है। This is what I mentioned in the title, Does God have secrets? और यही बात मैंने विषय में बताई थी कि क्या परमेश्वर के पास गुप्त बातें हैं, भेद है। Till now I was explaining to you how God carries the secrets which are not और here. अब तक मैं आपको बता रहा था कि किस रीति से परमेश्वर भेद को लेके चलता है जो इस किताब में नहीं है। With last example I will close. और एक अंतिम उदाहरण मैं आपके दूंगा और खत्म Regarding करूंगा। the secret, और भेद के बारे में let me tell you, when 5,000 people were sitting there, जब 5,000 लोग वहां पे बैठे हुए थे Jesus had 5 loaves and 2 fish. और यीशु के पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी। God had never fed 5,000 people with 5 loaves and 2 fish before. और परमेश्वर ने इससे पहले कभी भी लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से खाना नहीं खिलाया था। But God disclosed His secret to Jesus, and Jesus told them to distribute, and 5,000 people ate. लेकिन परमेश्वर ने इस भेद की बात को यीशु के ऊपर प्रकट किया और यीशु ने उन चेले लोगों को कहा कि उन 5 रोटी और 2 मछलियों को उन भीड़ को बांटने के लिए। I hope so you came to know what is secret and how much secret are still balanced with और God. मैं उम्मीद करता हूं कि आप जान पाए कि भेद क्या है और कितने ऐसे भेद हैं जो परमेश्वर के पास है। With Jeremiah 33 and verse 3. और यिर्मयाह की किताब उसका 33 उसका 3 वचन। He says, Call unto me and I'll answer you and tell you great and unsearchable thing you do not know. और कहता है कि मुझे पुकारो और मैं आपको उत्तर दूंगा और मैं ऐसी बातें बड़ी और महान बातों को आपको बताऊंगा जो तुम्हें मालूम नहीं है, which you do not know. और जो आपको पता नहीं है उन बातों को बताऊंगा। Now let me tell you what things you know. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सी बातें आप जानते हैं। Whatever is written in this book, और जो कुछ इस किताब में लिखा है, whatever is written in this book, you know it. और जो कुछ इस किताब में लिखा है वो आप जानते हैं। But God says, Call unto me and I will tell you those things which you don't know. लेकिन परमेश्वर कहता है कि आप मुझे पुकारो और मैं बड़ी बड़ी कठिन बातें जिन्हें तू नहीं जानता है मैं बताऊंगा। That means I will disclose secrets to you. इसका मतलब मैं आपके ऊपर भेद को प्रकट करूंगा। That means I will tell you those things which till today you don't know God can do it. और इसका मतलब मैं आपको उन बातों को बताऊंगा जो अभी तक आप नहीं जानते और जो परमेश्वर कर सकता है। This is what now we are going to go to the second part of the message. और यही बात को लेकर अभी हम इस संदेश के दूसरे भाग में जाने वाले हैं। Whom does God disclose the secrets to? और किनके ऊपर परमेश्वर इन भेदों को प्रकट करता है। God is going to disclose the secret to only to those who fear Him. और परमेश्वर इन भेदों को उन्हीं के ऊपर प्रकट करता है जो लोग उससे डरते हैं। What do you mean by fear of और God? परमेश्वर का डर मतलब क्या है? Fear of God doesn't mean reverence towards God. और परमेश्वर का डर मतलब ये है कि उनके उसके प्रति आदर और सम्मान। Even Satan have reverence toward और God. यहाँ तक कि शैतान भी परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर का सम्मान करता है। But that doesn't mean Satan obeys God. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शैतान जो है वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। What do you mean by fear of God? और परमेश्वर का डर मतलब क्या है? Fear of God is nothing but not to offend God in any way. और परमेश्वर का भय खाना और कुछ नहीं लेकिन किसी भी बात में परमेश्वर को ठोकर नहीं खाना। That means don't keep a desire to offend God in your life. इसका मतलब कोई भी ऐसी इच्छा को ना रखो जिसके साथ परमेश्वर दुखित हो सकता है। Many people say I love God. और बहुत सारे लोग कहते कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। But these people easily offend God by
by doing things which God doesn't like. और लेकिन ये लोग हैं उन बातों के करनों के द्वारा परमेश्वर को दुखित करते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता। Bible says in Ephesians chapter 4 and verse 30, do not grieve the Holy Spirit. और बाइबल एफेसी की किताब उसका 4 अध्याय और 30 वचन में कहती है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। What do you mean by grieving the Holy और Spirit? पवित्र आत्मा को शोकित करना मतलब क्या है? Don't offend Holy Spirit in any way. और पवित्र आत्मा को किसी भी बात से दुखित ना करना। If you offend Holy Spirit, Jesus said the sins will never be forgiven. अगर आप पवित्र आत्मा को दुखित करते हैं तो यीशु कहते हैं कि वो पाप आपका कभी क्षमा नहीं होगा। Many things happen with people of God, but other people don't believe it because it is not written in God's word. और बहुत सारी बातें परमेश्वर के लोगों के साथ होती है लेकिन दूसरे लोग विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि ये बातें इस पवित्र शास्त्र में नहीं लिखी है। I know there was a time 15 years ago that a spirit of laughter had come in the church. और मैं जानता हूं कि 15 साल पहले जो कलीसिया में जो है वो हंसी का आत्मा जो है वो आया हुआ था। And when the spirit of the laughter came, there was big discussion in many places. और जब हंसी का आत्मा कलीसिया में उतरा था तो बहुत सारी जगहों पे ये बड़ी चर्चा की बात थी। People were laughing and laughing continuously. लोग जो है वो लगातार हंस रहे थे। When in the midst of the worship only the spirit of the laughter is to come and people is to laugh and laugh. और स्तुति गान के बीच में ही जो हंसी की आत्मा आती थी और लोग हंसते रहते थे। So upon whom the spirit of laughter had not come, they had a question. और जिसके ऊपर ये हंसी की आत्मा नहीं आई थी उनके पास ये सवाल था। The churches which were not going through the spirit of laughter, the spirit was not coming upon them, they were saying this is demonic. और जिन कलीसिया में ये हंसी की आत्मा नहीं तो उतरती थी वो कलीसिया कहते थे कि ये जो है वो दुष्ट आत्मा का है। Now let me tell you something. और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Don't grieve the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा को शोकित ना करे। This laughter was not a normal laughter. और ये जो हंसी थी वो एक साधारण हंसी नहीं थी। This laughter was abnormal because you cannot laugh for continuously for half an hour and 45 minutes. और ये जो हंसी है वो असाधारण थी क्योंकि कोई भी इंसान 30 मिनट या 40-45 मिनट हंस नहीं सकता। Now let me tell you, this is what Jesus is saying in John 14:12. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही जो यीशु यूहन्ना 14:12 में कहता है। I'll tell you the truth. Anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than these because I am going to go to the Father. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा वरन इससे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। What is Jesus saying in this word? यीशु इस वचन में क्या कहता है? Jesus is saying in this scripture that whatever he has done, which has been mentioned in the book, the person who believes in him, who has faith in him, shall also do. और बाइबल कहता है, यीशु कहता है कि इस किताब में जो भी लिखा है और जो विश्वास करता है इस किताब पर वो भी ये बातें और इससे बड़ी बात करेगा। नहीं, यीशु क्या कहता है कि जो उसके ऊपर विश्वास करता है वो सारी बातें करेगा जो उसने की, जो इस किताब में लिखी है। लेकिन वही यहाँ पर नहीं रुकता, वो आगे चलकर कहता है और भी अधिक काम करेगा जो ये किताब नहीं बताती, जो ये किताब में नहीं लिखी। ये कौन करेंगे? ये वही लोग करेंगे जिसको परमेश्वर भेद की बातें बताएगा। और ये इससे बड़ी लोग उन बातों को करेंगे और ये वो लोग होंगे जिनके ऊपर परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करेगा। That means what Moses has not done, what Abraham has not done, what David couldn't do, what Jeremiah never did, what Jesus also never did. Jesus says you can do it, and this is the power of the Holy Spirit. और इसका मतलब जो मूसा ने नहीं किया है, जो दाऊद ने नहीं किया है, जो यिर्मयाह ने नहीं किया है और कदाच शायद यीशु भी नहीं किया, यीशु ने भी नहीं किया है, यीशु कहते हैं कि उन बातों को वो व्यक्ति करेगा जो विश्वास करता है। I hope so you are understanding that don't fix God in the box by your thought process
that only this way God functions. अब मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं कि कभी भी परमेश्वर को आपके विचारों में सीमित ना रखें कि परमेश्वर यही इतना ही करेगा। Let me tell you, a pure man has the authority on the earth. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पवित्र व्यक्ति होता है उसका अधिकार है इस धरती पर। Let not no one deceive you. और कोई भी आपको ना भरमाए। How many people know purity means white color? और कितने लोग जानते हैं कि शुद्धता मतलब सफेद रंग। I can show you different types of white color. और मैं आपको अलग अलग प्रकार के सफेद रंगों को बता सकता हूँ। That means there are different ranking in purity. इसका मतलब शुद्धता में भी अलग अलग प्रकार है। Listen, और सुनिए 1 Peter 1:16. और पहला पतरस 1:16। Be holy because I am holy. This is what God said. और परमेश्वर कहता है कि क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। Now many people doesn't understand what is holiness. और अभी बहुत सारे लोग नहीं समझते कि पवित्रता क्या है। Holiness and righteousness are two different things. और पवित्रता और धार्मिकता दोनों अलग अलग बातें हैं। Holiness is talking about our own heart, that we are separated from other people. और पवित्रता जो है वो हमारे खुद के हृदय के बारे में बताता है कि हम दूसरे लोगों से अलग किए गए हैं। Holiness has nothing to do with sin. और पवित्रता का पाप से कुछ भी लेन देन नहीं है। Yes, righteousness have definitely to do with sin. और धार्मिकता का बातें हैं उनको साथ जो है वो पाप का लेन देन है। God says, be holy as I am holy. परमेश्वर कहता है कि पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। Now there was no question about sin in God. और कोई भी एक पाप का सवाल नहीं है जो परमेश्वर में है। And God doesn't talk about sin. और परमेश्वर जो है पाप के बारे में बात नहीं Why करता God है। should say, be like me because I don't have sin? No, 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 no. God had no sin in his life at all. और परमेश्वर को क्यों ऐसा कहने की जरूरत है कि मेरे अंदर कोई पाप नहीं है तो आप भी पाप न करो। परमेश्वर को इसके बारे में कहने की जरूरत नहीं क्योंकि परमेश्वर के अंदर कोई पाप नहीं है। So please remember, holiness has nothing to do with sin. और याद रखिए कि जो पवित्रता है वो पाप से अलग है, उसका कुछ लेन But देन नहीं है। righteousness means right standing with God. लेकिन धार्मिकता मतलब परमेश्वर के सामने सही रीति से खड़ा होना। That means you are no longer a sinner. इसका मतलब आप अभी कोई भी आपके अंदर पाप नहीं है या फिर That आप means पापी you are नहीं हैं। standing on the right ground with God. इसका मतलब आप सही रीति से परमेश्वर के सामने खड़े हैं। How you can have the righteousness, this can be only because of what Jesus did on the cross. और आप कैसे धार्मिक बन सकते हैं वो, और ये इसी रीति से धार्मिक बन सकते हैं क्योंकि यीशु ने कलवरी क्रूस पर अपना जीवन दिया। The blood which he shed on the cross and the sins which he took of yours, because of that you have a right ground for yourself to stand before God. और उसने जो कलवरी क्रूस पर लहू बहाया, उसने जो आपके पापों कर कलवरी क्रूस पर लिया, इसीलिए आप परमेश्वर के सामने सही रीति से खड़े हो सकते हैं। That means what Bible talks about fear is purity. और इसका मतलब बाइबल जो भय के बारे में बात करती है इसका अर्थ ये है कि पवित्रता। Purity means avoid those things which will defile you. और पवित्रता मतलब उन बातों को दूर रखे, उन बातों से दूर रहे जो आपको अशुद्ध कर सकती है। Jesus said in Matthew 12 verse 37, what comes out of your mouth defiles you. और मत्ती 12:27 में यीशु कहते हैं कि जो भी आपके मुख से निकलता है वो आपको अशुद्ध करता है। 12:37, 12:37. 12:37 He said, what comes out of your mouth defiles you. जो आपके मुंह से निकलता है वो आपको अशुद्ध करता So है। today, God wants to challenge you in your life. और आज परमेश्वर आपके जीवन में ये चुनौती को देना चाहता है। If you do not defile God, अगर आप अगर अशुद्ध नहीं करते परमेश्वर को, if you do not offend God in any way, अगर आप परमेश्वर को दुखित नहीं करते किसी भी प्रकार then से, you are the person who fear God and God will disclose secrets in your और फिर life. आप वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर से डरते हैं और परमेश्वर आपके जीवन में उन भेदों को प्रकट करेगा। When God talks to you, when God discloses the secret,
don't think that this it will be written in God's word. और जब परमेश्वर उन भेदों को आपको बताता है तो ऐसा मत सोचिए कि वो भेद को इस बाइबल में लिखा होगा। He may speak to you in a different way. और वो आपको अलग प्रकार से बात कर सकता है। He will do a new thing in your और life. वो नई बातों को आपके जीवन में करेगा। You need to just change your thought और process. आपको सिर्फ अपने विचार शैली को बदलना है। You should think as God thinks about you. और आपको उस तरह से सोचना है जिस तरह से परमेश्वर आपके बारे में सोचता है। With this, I want to pray for you और today. इसके साथ मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना The चाहता way हूँ। God has healed someone before, it is not necessary God will heal you in the same way. और ये जरूरी नहीं कि परमेश्वर ने जिसको पहले चंगा किया उसी रीति से आपको भी चंगा करेगा। In the Bible, God told Naaman to go and take the bath in Jordan such that his leprosy will go away. और बाइबल में नामान को परमेश्वर ने कहा कि यरदन की नदी में जाकर डुबकी लगा तो उस तरह से परमेश्वर चंगा नहीं करेगा किसी और But को। Jesus took the mud and spat on it and he applied that mud to the blind eyes. The blind eyes were open. लेकिन यीशु ने मिट्टी को लिया और उसमें थूका और अंधे के आँख को लगाया और चंगा हो गया। Every time God does in a new way. और हर एक बार परमेश्वर नई रीति से काम करता So है। if you have come before God today, don't expect that He will do as per this book only. और अगर आज आप परमेश्वर के सामने आए हुए हैं तो आप ये सब मत सोचिए कि परमेश्वर इस किताब में लिखी है उन्हीं बातों के अनुसार कार्य करेगा। I want you to raise both of your hands today as I'm going to मैं pray. चाहता हूं कि आप दोनों हाथों को उठाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। I am going to tell you that this is what God is saying. I will disclose things which you have never thought और before. मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कहता है कि इन बातों को मैं आपके ऊपर प्रकट करने वाला हूं जो पहले कभी नहीं किया है। I want you to pray for you today. मैं चाहता हूं कि आज आप प्रार्थना करें। Father in heaven, I just want to thank you for every hand which has been lifted up and who has listened the word of God. स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन हाथों के लिए जो उठाए गए और जिन्होंने आपके वचन को सुना है। Father, I pray new things shall happen in their life. पिता, मैं प्रार्थना करता हूं नई बातें उनके जीवन में होनी पाए। God, I pray that they shall not limit you by their thought process. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं वो उनके विचार शैली के द्वारा तुझको सीमित न करने पाए। I pray for every sick body to be healed in Jesus' name. मैं प्रार्थना करता हूं हर एक बीमार शरीर यीशु के नाम से चंगा हो जाए। I pray for every demonic attacks that they shall be और delivered. मैं प्रार्थना करता हूं हर एक दुष्ट आत्मा से जुड़ी बातों के लिए कि परमेश्वर उनको छुटकारा दे। Father, I come against every depression in the name of Jesus Christ. पिता, मैं हर एक निराशा के विरोध में आता हूं यीशु के नाम से। Thank you, Master, for protecting them. धन्यवाद स्वामी उनको सुरक्षा देने के लिए। Thank you, God, for speaking them today through your word. धन्यवाद प्रभु आपके वचनों के द्वारा उनसे बातें करने के लिए। We just lift the name of God higher today. और आज हम यीशु के नाम को और ऊंचा उठाते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। And all God's people said और amen. सभी परमेश्वर के लोग कहे आमीन। May the love of God, परमेश्वर का प्रेम, the grace of our Lord Jesus हमारे Christ, प्रभु यीशु मसीह का and the अनुग्रह, communion of the Holy Ghost पवित्र आत्मा की संगति shall be with us forever and हम ever. सभी के साथ रहे हमेशा हमेशा के लिए। Amen and amen. आमीन आमीन। My dear friends, और मेरे प्रिय मित्रों, if you have any prayer request, अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन our है contact number is coming और down. हमारा संपर्क नंबर आपके पास आ रहा है। Please mention your prayer request और there कृपया करके आपके प्रार्थना विनतियों को लिखे so that the church will pray for you. ताकि कलीसिया आपके लिए प्रार्थना कर सके। If you want to give towards the ministry, अगर आप इस सेवकाई के लिए देना चाहते हैं please bill free. Our account details are coming down. और कृपया हमारा जो अकाउंट डिटेल से विवरण है वो स्क्रीन पे आ रहा है। Thank you. Hope you with best health till coming Sunday. धन्यवाद और आने वाले रविवार तक आप सही रहेंगे। Amen and amen. आमीन आमीन।